नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थे नित्यं विद्यादानं च देहि मे आमिपन सदरस नाविछस लमान कतिबोज दयम्योन मितिदीतार आम्यन टाक्यन पोइन जन श्रमान जूछुम ब्रमान गरगछ सारनी जिठन बुजुर्गन बिनियन बायन त निर्वासनस मंज मेनिस कोशरिस बट समाजस चुम्योन गुल जगंडित नमस्कार तो सारनी छो आज होमलैंड डे हुक पोस्ट मुबारक हैप्पी होमलैंड डे टू ऑल ऑफ अस यह सुदो सनिस इतिहासस मंज यम दो सोन समाज एकत्रित गो 1991 मंज 28 दिसंबर तो एस कोर मार्गदर्शन रेजोल्यूशन अडॉप्ट यह सो रेजोल्यूशन बह अत सिर्फ रेजोल्यूशन यह रेवोल्यूशन यह मार्गदर्शन रेवोल्यूशन यह सो रेवोल्यूशन यम यह एनश्योर कोर कि अस मेल कशीर मंज अख सेपरेट सेफ सस्टेनेबल होमलैंड येत पेठ न कोशुर बट समाज जा ही फ्यूचरस मंज नेबर कड़न यह सो रेजोल्यूशन युस ये एनश्योर करन सिंस 28 दिसंबर 1991 अमि दोह पत येलेस कशीर वापस तरो पन्निस होमलैंडस मंज काह नितिन दर बन नदीम डार बे कोई भी नितिन दर आगे आने वाले समय में नदीम डार नहीं बनेगा। यह वो रेजोल्यूशन है जो इस बात को सुनिश्चित करता है। बुचुस माफी तो मंगन तो सारनी के बगर पनी लैंग्वेज थोड़ा चेंज बहक यह सोरी तो कशिर पट वनित मगर मे बासान कि सन कम्युनिटी हिंद नफर नेबर त मेंबर नेबर स्पेशली तिम यम मेन पट नम तो पत जामत ओवरसीज तिम शायद हेकन लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर इसलिए कर बह इंग्लिश पट कथ। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड द रीजन आई एम चेंजिंग द लैंग्वेज। I am first of all thankful to the organization for giving me this honor to speak in front of you. I don't know whether my age or my limited experience makes me deserving of this honor, but I am very sure of one thing. Somebody who was born post 1990 in exile, for a person like that to stand on this platform is the biggest slap on the face of jihad. This is the slap on the face of jihad. And that gives me the confidence to speak in front of all of you today. Before I talk about the subject and the theme that we have today, I am compelled to mention some people. I'm compelled to mention, I would love to express my gratitude towards Titu sir and Dilip ji for helping me understand what genocide really is, and for giving me the pleasure of having countless interactions with them to increase my understanding and knowledge about this subject. I am absolutely indebted to the organization Panun Kashmir, to every single activist who has shed their sweat, blood, tears on the street for this struggle, and especially to our leadership. Dr. Ajay Changu is here. Thank you so much for helping us, for instilling the exile consciousness in us, and for building the appropriate political comprehension in our community and especially among the youth. I see that the theme today is Hindus caught up between jihad and denial of genocide. This is a very appropriate theme for the day. We cannot talk about solutions if we do not address the problem. We cannot see a tomorrow if we do not look at yesterday. But if I'm allowed, I would like to add one more thing. Yes, Hindus and especially Kashmiri Pandits, Hindus are caught up between jihad and denial of genocide, but we are also the face of resistance against jihad and denial of genocide. We are the frontline warriors. The Kashmiri Pandit community is at the forefront of not just fighting, but defeating jihad and denial of genocide. A renowned genocide scholar who is acclaimed internationally, Gregory Stanton, some of you must have heard his name. We have many
ideological, political differences with him and we contest him. But his stage theory on genocide is internationally accepted and recognized. So I want to touch upon the issue and the subject of genocide for a little while. Because it's very important to talk about genocide also in an academic way, because if we don't understand the crime that was committed against us, that is part of international law, and the convention that India has ratified in 1959, it might become a challenge for us to move forward tangibly. So Gregory Stanton gave a stage theory which had 8 stages and later now it has 10 stages. I'll read out the stages to you in brief. There are classification, आप चुनते हैं कि कौन से समाज को आपको प्रताड़ित करना है, classification, then there is symbolization, discrimination, dehumanization, organization, polarization, preparation, then they prepare to persecute us, then there is persecution, extermination, and then the final stage that Gregory Stanton mentions is denial of genocide. That is when he thinks that the process of genocide is complete. There are many scholars that believe that it does not end there. There is a final objective post denial of genocide, which is consolidation of genocide. एक माहौल को कंसोलिडेट करना, आपने डिनाई तो कर दिया, आप ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडित्स के साथ जेनोसाइड नहीं हुआ, आप ये कह के डिनाई करते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया यहां रुक नहीं जाती, आप उसको उस हद तक डिनाई करते हैं जहां पर सोशल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो जाए कि वो जेनोसाइडल एनवायरनमेंट परपेचुअली मेंटेन रहे उस अफेक्टेड एरिया में, या इसको सिंपली हम इस तरीके से बोल सकते हैं, एक ऐसा माहौल बनाए रखना हमारे केस में कश्मीर के अंदर जिसमें कश्मीरी पंडित को खुद ये लगे कि मेरा वापस जाना अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट ऐसा, वहां का स्टेटस को ऐसा मेंटेन्ड है. उसकी नॉर्मलाइजेशन जब हो जाती है तो कंसोलिडेशन होती है. जब ये लगता है कि ये तो नॉर्मल है, जैसे आज की सरकार हमें बोलती है कि कश्मीर में नॉर्मल सी है या ये नया कश्मीर है, तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या ये नया कश्मीर वो कश्मीर है सरकार के लिए जिसमें कश्मीरी पंडित अब नहीं है? जिस कश्मीर में कश्मीरी पंडित नहीं है वो नया कश्मीर है, ऐसा हमें कहा जाता है. तो दीज प्रोसेसेस लीड टू कंसोलिडेशन, जो ये सुनिश्चित करती है कि हमारी साइकी में भी ये बात चली जाए कि अब हम वापस नहीं जा सकते. लेकिन मैं इससे भी और थोड़ा आगे आपको लेना चाहता हूं, जितना भी मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूं इस इशू को, इस सब्जेक्ट को, क्योंकि मुझे लगता है हमारे समाज को इन चीजों के बारे में बात करना और डिस्कोर्स आपस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. यह बात कंसोलिडेशन पे भी नहीं रुकती. मेरा यह मानना है कि कंसोलिडेशन का भी एक ऑब्जेक्टिव है, और अल्टीमेटली, मैं गलत हो सकता हूं, मेरे से जो सीनियर है वो शायद करेक्ट कर सकते हैं, बट ये मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जेनोसाइड का जो ऑब्जेक्टिव है, जो इंटेंशन है, वो एक प्लेस का मीनिंग चेंज करना है. उस जगह को किस संस्कृति से लोग जाने, उस जगह का मीनिंग क्या है, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, उसे बदलना ही जेनोसाइड का अल्टीमेट गोल है, ऐसा मैं मानता हूं. तो कंसोलिडेशन एनेबल्स, वो एनेबल करता है और इंश्योर करता है, जैसे हम देखते हैं कि कश्मीर में बहुत सारी, इवन हमारे तीर्थ स्थलों का नाम बदल दिया जाता है, अनंतनाग को इस्लामाबाद कर दिया जाता है, श्रीनगर को बहुत जगहों पे शहर खास कर दिया जाता है. ये एविडेंसेस है उस प्रक्रिया के. ये एविडेंट है कि वो कंसोलिडेशन को जगह का नाम चेंज करने से उसका मीनिंग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो सिर्फ नाम चेंज करना उनका उद्देश्य नहीं है, वो कश्मीर को आज से 1000 साल बाद, क्योंकि दे आर वेरी पेशेंट, दे हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, दे आर रेडी इवन इफ दे हैव टू वेज दिस वॉर फॉर जनरेशंस टू कम. वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाले समय में, सदियों के बाद क्यों ना हो, कश्मीर को लोग किस रेफरेंस पॉइंट, किस सिविलाइजेशनल रेफरेंस पॉइंट से जानेंगे. और जब हम पनून कश्मीर की बात करते हैं, हम ये डिस्कोर्स भी भारत में सुनते हैं कि हिंदू रेजिस्टेंस अब बढ़ रही है. मुझे बिल्कुल ऐतराज नहीं होगा ये बोल के कि वो हिंदू रेजिस्टेंस जो है, उसका फ्रंट लाइन इज पनून कश्मीर.
The front line of Hindu resistance in Bharat is Panun Kashmir, because the genocide of Kashmiri Pandits is the first and foremost problem, challenge and issue that this Hindu resistance so called needs to address as a prerequisite. अगर हमें भारत में सनातनी संस्कृति जिसकी हम बात करते हैं, अगर उसे स्थापित करना है या हम उसे बढ़ावा देना चाहते हैं, यह पनून कश्मीर के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता. You have to plug this problem at its root. And in that case, Margdarshan Resolution, Panun Kashmir, the movement for homeland, is a prerequisite and the face of that Hindu resistance. और जिस विषय के बारे में मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि जो जेनोसाइड परपेट्रेट करता है, जैसे हमारे साथ हुआ, उसका अल्टीमेट उद्देश्य यह होता है कि उस जगह का वो मीनिंग चेंज करे. हम जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारत का फुटहोल्ड कश्मीर में पनून कश्मीर के माध्यम से बनाने की बात करते हैं, तो उसका एसेंस भी इसी बात में छुपा है कि कश्मीर की जो सिविलाइजेशन है हिस्टोरिकली, जिसे हम जानते हैं, जिसके हम उदाहरण हैं, जिसे हम आज भी जी रहे हैं, वो कश्मीर में तभी स्थापित हो सकती है सिविलाइजेशन जब पनून कश्मीर की स्थापना होगी. उसके बिना कश्मीर को भी, इवन द एरिया दैट इज आउटसाइड ऑफ पनून कश्मीर, उस कश्मीर को भी अपना मीनिंग वापस नहीं मिलेगा जब तक पनून कश्मीर की स्थापना नहीं होगी, क्योंकि पनून कश्मीर इज द कैरियर ऑफ द मीनिंग ऑफ कश्मीर. ये वो वेसल है जिसमें कश्मीर का मीनिंग हम पुनर्स्थापित करेंगे कश्मीर के अंदर. इसके बिना कश्मीर की जो आत्मा है, जो हम लोग हैं, वो कश्मीर के अंदर पुनर्स्थापित नहीं हो सकती. और अगर कश्मीर के अंदर उसका मीनिंग रेस्टोर नहीं होगा, तो जिस भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं, जिस भारत की हम कल्पना करते हैं, वो भारत भी नहीं बन सकता अगर हम पनून कश्मीर की स्थापना नहीं करेंगे. एक बहुत बड़ी आयरनी मैं देखता हूं जब हम जेनोसाइड जैसे क्राइम को एड्रेस करने की बात करते हैं. ये हम सबको मालूम भी होना चाहिए कि जेनोसाइड का जो क्राइम है, इवन जो वर्ड है जेनोसाइड, ये एक पोलिश जूविश लॉयर थे डॉक्टर रफेल लेम्किन, उन्होंने कॉइन किया था. और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में एक ड्राफ्ट लाया था जेनोसाइड कन्वेंशन का 1948 में. पूरी दुनिया में डॉक्टर रफेल लेम्किन घूमे इस कैंपेन के लिए कि जेनोसाइड जैसा क्राइम क्रिमिनलाइज होना चाहिए इंटरनेशनली, स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और आप सरप्राइज होंगे ये जान के कि डॉक्टर रफेल लेम्किन का पूरी दुनिया में, यूरोप से लेके अमेरिका से लेके, किसी वर्ल्ड पावर ने सपोर्ट नहीं किया. इट वॉज 3 countries at that time that co-sponsored this United Nations Genocide Convention, and those 3 countries were Cuba, Panama और हमारा भारत, इंडिया. We are the co-sponsors of the United Nations Genocide Convention. और अब आयरनी देखिए, 1959 में हमारे पार्लियामेंट ने माना है कि जेनोसाइड इंटरनेशनल क्राइम है और हमने रेटिफाई किया है जेनोसाइड कन्वेंशन को. लेकिन आज तक उसके रेटिफिकेशन का भी मैं आपको मतलब बताता हूं. इस बात का यह मतलब है कि यह ऑब्लिगेशन है हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर, यह मैंडेटरी है भारत के ऊपर कि भारत में जेनोसाइड जैसे क्राइम का कानून होना चाहिए. अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम में से किसी के घर में चोरी हो जाती है, एक मामूली सा क्राइम हो जाता है, अब आप मुझे बताइए चोरी के ऊपर कानून ही नहीं है, तो क्या आपकी कहीं सुनवाई होगी? यह बात यहां पे आके अटकी है कि भारत में जेनोसाइड जो क्राइम हमारे साथ हुआ है उसका कोई कानून ही नहीं है. तो जब तक वो कानून नहीं आता, इस क्राइम को एड्रेस नहीं किया जा सकता. और आज तक एक भी व्यक्ति इतनी बड़ी क्राइम करने के बाद भी जेल की सलाखों के पीछे इसीलिए नहीं है क्योंकि कोई कानून ही नहीं है. तो पनून कश्मीर ने 2 काम जो हमारे सामने रखे हैं, जो 2 हिस्टोरिक मोमेंट्स इस मूवमेंट के रहे हैं. पहला हम जानते हैं मार्गदर्शन रेजोल्यूशन, जिसको आज हम मना रहे हैं. और दूसरा 2020 में जब पनून कश्मीर जेनोसाइड एंड एट्रोसिटीज प्रिवेंशन बिल 2020 भारत सरकार के सामने रखा, हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने रखा, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके सामने रखा, सभी पार्लियामेंटेरियंस को भेजी. दैट इज द सेकेंड मोस्ट हिस्टोरिक मोमेंट. एंड इफ आई ट्राई टू कम्युनिकेट विद पीपल ऑफ माई
age or my generation, especially those who were born post 90. I know that all of us are busy and we have made immense progress, but we need some tangible goals. We need some immediate goals to achieve the ultimate goal. और मैं आप सभी युवाओं से ये स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं और अपील करता हूं कि जेनोसाइड जैसे सब्जेक्ट को पढ़ें, because we do not live a normal life. We are children of conflict. We cannot end at progress. We cannot end at an annual package by an MNC. That annual package by an MNC should enable us to fight back. That money, those resources, those contacts, they should enable us to fight back and get justice for our parents and grandparents who have sacrificed everything. There is nothing left with them to sacrifice now. हमें यह सुनिश्चित करना है, हम दुनिया में किसी भी कोने पे क्यों ना हो, किसी भी कंपनी में कोई भी काम क्यों ना करते हो, हमें इस जेनोसाइड बिल को हर इंसान तक पहुंचाना है, हमें इसके लिए आवाज उठानी है और हमें यह इंश्योर करना है कि जल्दी से, लोग बोलते हैं कि अरे कितना टाइम लगेगा, अभी तुमने बिल दिया है, तुमको कब तक चाहिए, हमको अभी चाहिए, हमको कल चाहिए. We are not here to wait for generations, but even if we have to, we'll fight it out till the end. So there are two things. When we talk about denial of genocide and consolidation of genocide, it is only the genocide bill and the ultimate goal of separate homeland that can defeat this whole process absolutely and for all times to come. And it will ensure कि हमारे साथ आने वाले समय में कभी भी, हमारे साथ क्या किसी के साथ भी इस देश में ऐसा कभी ना हो. कुछ लोगों को मैं यह भी कहते हुए सुनता हूं कि हम एक वोट बैंक नहीं है, हम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इनसिग्निफिकेंट है. ऐसा नहीं है. ऐसा हमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन हम इनसिग्निफिकेंट नहीं है. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. पिछली बार जब लोकसभा के इलेक्शन हुए, आपने देखा होगा, स्पेशली द रूलिंग पार्टी, हाउ मेनी रिसोर्सेज, how many campaigns they were putting together to ensure that we cast vote. And even in an interview of a union minister, when the interviewer asked him कि आप बताइए, अभी ये इलेक्शन, पहला इलेक्शन हुआ है 370 हटने के बाद, तो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो आपको पता है उस मिनिस्टर ने क्या बोला, यूनियन मिनिस्टर ने, कि उसने एक अचीवमेंट ये गिनवाई कि कश्मीरी पंडित ने वोट डाला है जी इतना %. तो आप इनसिग्निफिकेंट नहीं है, आप पॉलिटिकली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है. आप जम्मू कश्मीर के वोट बैंक शायद नहीं हो सकते, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आप डिसाइड करते हैं वोट बैंक जो है उनका वो किस दिशा में मोड़ लेगा. तो आप अपने आप की सिग्निफिकेंस को समझिए, अपनी इंपॉर्टेंस को समझिए और अपने लक्ष्य पे ऐसे ही चलते रहिए. यह मैं आपसे आग्रह करूंगा. और जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी कम्युनिटी के यूथ से फिर से एक अपील करता हूं कि आइए खड़े होते हैं अपने समाज के साथ. आई थिंक दिस इज द टाइम. एंड हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स की जनरेशन ने बहुत कुछ खोया. दे हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स, दे हैव ओनली डन थिंग्स फॉर अस. इट इज टाइम फॉर अस to come forward and fight back and take this movement to next level and realize this dream not only for our parents or grandparents but all those ancestors who ensured that we survive. हम अगर सरवाइव करते हैं तो उसका कारण यह है, अगर आज कश्मीरी पंडित जिंदा है तो मैं समझता हूं कि वो अपने आप में मिरेकल है. लेकिन मिरेकल कहना बहुत इजी हो जाता है. इट इज बिकॉज कि मेरे किसी पूर्वज ने अपने गर्दन पर तलवार रखवाना ठीक समझा, लेकिन कन्वर्ट होना ठीक नहीं समझा. हमारा 1990 में कश्मीर से निकलना, इट वॉज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ विक्टिमहुड, इट वॉज एन एक्ट ऑफ डिफायंस. हमने रिजेक्ट किया उस समाज को जिसने हमें कंपेल किया, जिसने हमें यह कहा कि रलियो चलियो या गलियो. हमने कहा हम गल जाएंगे लेकिन तुम्हारे साथ रलेंगे नहीं. इट वॉज अ ब्रेव एक्ट, इट वॉज अ करेजियस एक्ट, इट वॉज अ heroic act, and we need to breathe that heroism in our lives. There is absolutely no need of being disappointed or hopeless, and we don't need to take hope or get hope from anybody else, because we are the hope. अगर हम खत्म हो गए तो भारत की होप खत्म हो गई. हम होप हैं तो हम होप दे सकते हैं. हमें किसी की होप लेने की जरूरत नहीं है. हमें अपने आप की अहमियत को समझना चाहिए, अपनी सिग्निफिकेंस को, अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसे जीना चाहिए. और आज हम उस क्रॉस रोड्स पे, 5 मिनट्स प्लीज इफ यू कुड अलाउ. आज हम जिस क्रॉस रोड पे हैं, मेरा यह मानना है कि कश्मीर में हमें 3 ऑप्शन दिए गए थे, रलियो,
चलियो गलियो। हमने वहां पर अपनी कॉन्शियस चॉइस बना ली और आज हम यहां पे हैं। एंड आवर मूवमेंट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। वी आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेजिस्टेंस। लेकिन आज मेरे हिसाब से हमारे पास दो ऑप्शंस, दो ही ऑप्शंस है। देयर इज ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज नो ग्रे, स्पेशली फॉर आवर कम्युनिटी। एंड दोज टू options, those two choices that we have are homeland or extinction. There is no third option. There is no third choice. So we have to make, I think we have made a conscious choice, and today's event is an example of that. If you allow me, I would like to recite a poem on Panun Kashmir that I have written some time back. और अगर आप लोग भी मेरा साथ देंगे, मैं एक लाइन पढ़ूंगा। कोशिश करते हैं कि आप सब मिलके वो एक लाइन बोलें, तो जब वो लाइन मेरी पोएम में आएगी उसके बाद आप उसे रिपीट कर सकते हैं। तो क्या आप मेरे साथ बोलेंगे? आपको बोलना है, आज हो कल हो हमें जाना पनुन कश्मीर है। आज हो कल हो हमें जाना पनुन कश्मीर है। तेरे मेरे माथे की अब एक ही लकीर है, एक हमारा रास्ता अब एक ही तकदीर है, एक ही निश्चय हमारा एक ही ज़मीर है। आज हो कल हो हमें जाना। हम हमारे पितरों के बलिदान की तस्वीर हैं, हम हमारे पितरों के बलिदान की तस्वीर हैं। ज्वाला है प्रतिरोध की, इतिहास की शमशीर है। हमसे जो कुछ हो सके वो सब करें संघर्ष में। आज हो कल हो हमें भूलना विध्वंस को। विध्वंस की चेतना ही हमें आगे लेके जा सकती है। भूलना विध्वंस को खुद पर चलाना तीर है। इट इज सुसाइडल इफ यू फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड विद अस। भूलना विध्वंस को खुद पर चलाना तीर है। आत्महत्या की तरफ प्रगति की तासीर है। चेतना विध्वंस की वनवास में जागीर है। आज हो कल हो हमें जाना है जहां सीमा वितस्ता, जिस होमलैंड की हम परिकल्पना करते हैं, है जहां सीमा वितस्ता है, जहां पर्वत हरी अमरनाथ प्रख्यात तुलमुल नाग में श्वेत खीर है। पुनः सतीसर के प्रथम पग की वहीं तामीर है। आज हो कल हो हमें जाना। शास्त्र रक्षक शैव धर्मी हम अनादि वीर हैं। शास्त्र रक्षक शैव धर्मी हम अनादि वीर हैं। एक है संकल्प हमारा जिसके सब पजीर हैं। चेतना के बान पर से मार्गदर्शन तीर है। आज हो कल हो हमें जाना। I would like to conclude by a quote that one of our fellow comrades, a hero of Panun Kashmir who left us very early, our brother Ajay Khosa, on the same day 28th December in 2021, on Homeland Day, he said something while accepting the honor by Panun Kashmir. And I would like to remind myself and all of us of that quote. And he said that Panun Kashmir is the collective karma of Kashmiri Pandits. As you can see, even on our banners, we have put it out. He said it in Kashmiri. He said, Panun Kashmir chu button hund karm. It is the collective karma of Panun Kashmir. And he also said that we have to keep fighting. That Panun Kashmir is the spirit of fighting that we have with us. And it should not matter for us. We should not even think about whether we will be victorious or not, because we will be. We should still keep fighting it out till the end. या तेज पर सुसम शायद ये सम्मान डिजर्व करेंगे। There is no likelihood कि डिजर्व करेंगे। मगर मेरी सीनियर इत्यादि है, चाहे डॉक्टर शेखर जी थे, डॉक्टर अजय जी थे, कुलदीप जी थे, जयपाल जी, कुरान जी, and above all, my mentor, Shri Titu Ganju ji, they are a little bit more apprehensive because of my health. Thank you. They are a little bit more apprehensive because of my health. इसलिए सोचते हो कि पगा मौके मिला न मिला. No, it's not that. I mean, I am not emotional at all, because everybody has to stay. Everybody has his own time in this material world. So
they ensured that the sincerity, the commitment, and the dedication of an activist is duly paid. And this is something which is for all the activists who are working for Panun Kashmir. Panun Kashmir kya chu? Vananche Nacham ke zer ki havin, Nacham namavari pravin, Rafiqan dardilan panyan, Dilik ehwal bavincham. It is all the expression of your thought, the expression of your heart, the expression of your mind, which comes through your karma. Panun Kashmir chu sarni button unda karma. Panun Kashmir chak bhavnak button is yimdan button identity this. Satan hatan varian mas agar button kehte political idiom soch kehte kathkaran yem season button saman mule. It is only Panun Kashmir. Minus Panun Kashmir, Kashmir's button clean identity. We have to bear it in our mind. As Paga, Sulisi, Ashichutarun Kashmir, Ashichutarun Panun Kashmir, and there is no other thought to that. And in the end, I would like to raise a slogan that is very dear to us. आप सब मेरे साथ बोलिए, चौन तकदीर म्योन तकदीर. सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, चौन तकदीर म्योन तकदीर. चौन तकदीर म्योन तकदीर. चौन तकदीर म्योन तकदीर. धर्मो रक्षति रक्षिता, पनुन कश्मीर रक्षति रक्षिता. जय भारत, जय पनुन कश्मीर. थैंक यू.